So hey guys, welcome back to my channel. I am Shantanu and in this video I am going to discuss about the types of operating system. So first operating system which is came into view is batch operating system. So this operating system came in 1950. At that time this technology was completely new. उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कंसेप्ट था ही नहीं और तब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नई थी. आज हमारे पास ऐसे है कि अगर हम प्रोग्राम देते हैं कंप्यूटर में तो विद इन अ माइक्रो सेकेंड हमें उसका एग्जीक्यूशन मिल जाता है. सो अब देखते हैं हम इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को. सो व्हाट हैपन्स इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनी प्रोग्रामर्स राइट देयर प्रोग्रामर्स अपना प्रोग्राम लिखते हैं. उसके बाद उस प्रोग्राम को डायरेक्टली कंप्यूटर से वो लिंक नहीं कर सकते. बीच में बहुत एक प्रोसेस होता है, उस पर जाना होता है. देन दे कैन एग्जीक्यूट and they can get the output. So basically suppose we have programmer 1 which is written up his program this P1, P2 and P3. Basically these are the programmers. So what they do, ये अपना जो प्रोग्राम है जो भी लिखेंगे ये सबमिट करते हैं ऑपरेटर को. रिमेंबर, इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर्स कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, सो दे सबमिट्स देयर प्रोग्राम टू ऑपरेटर. ऑपरेटर होता है एक पर्सन, ही इज अ पर्सन. देन दिस ऑपरेटर सबमिट्स द प्रोग्राम टू computer. This operator submits the program to computer with the help of magnetic tape, punch cards. So operator submits their program to computer with the help of magnetic tapes and punch cards. So these magnetic tapes and punch cards take a lot of time. And then final we get a output which is in printout form. So programmers write their program and then they submit to the operator. Operator at that time is a person, and then this operator submits their program to computer with the help of magnetic tape, punch card, which take a lot of time, and then finally we get the output. Now output आने के बाद if there is some error, अगर कोई error है then प्रोग्रामर को सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ता है, और अगर error नहीं है then this is executed. So बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि अगर सपोज करो दिस P1 and P2 they have same program, P1 and P2 same program. सो ऑपरेटर कलेक्टिवली ले लेगा उनको एक साथ. लेकिन अगर डिफरेंट है, ऑपरेटर सिर्फ एक बारी में एक ही कोड लेगा एक प्रोग्राम को. सो बेसिकली ये यूनी प्रोग्रामिंग के फंक्शन पर बेस्ड है. दिस इज द यूनी प्रोग्रामिंग मेथड. सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू ईयर्स, concept of multi-programming came into the view. Now we will see what is multi-programming. Multi-programming. What is multi-programming? So basically इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. सपोज हमारे पास रैम है 1 GB की, एंड उसमें रैम के हमारे पार्टीशंस हमने कर लिए हैं, ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. दिस 1 GB RAM and we have divided in blocks. Now we can load, suppose we are loading 6 processes, P2, P3, P4, P5, P6.
So this is multi-programming environment where we can load multiple programs. बट इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था, ऑपरेटर सिर्फ एक बार में एक ही प्रोग्राम को ले रहा था. बट इन मल्टी प्रोग्रामिंग वी कैन लोड a lot of program at the same time. This is the concept of multi-programming. So when we are talking about multi-programming, so we are talking about multitasking also. So what is this multitasking? Suppose ये प्रोसेस P1 है, ये CPU के पास जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, ये CPU के पास गया एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ समथिंग he need a file, so it is holding CPU, so it is temporarily terminated. In that case CPU will not wait for this P1 कि कब P1 का जो IO वेट है ये वो कब ख़त्म हो और देन उसके बाद P2 आए. नहीं, CPU will switch to P2. Suppose when P2 came, it also wants some file, इसको भी किसी फाइल की ज़रूरत है, and this is also holding CPU. So then what CPU will do? CPU will take P3 for execution. So this is multitasking, that CPU is able to preempt the processes. This is multitasking. अब हमने मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में जान लिया है और मल्टीटास्किंग के बारे में जान लिया है. अब हमें पता करना है व्हाट इज़ टाइम शेयरिंग. सो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज वी आर डूइंग 3 processes like P1, P2, P3. Suppose we are watching something in media player and we are chatting and we are doing a programming. तो हम ये तीन काम को एक साथ कर रहे हैं. हमको क्या लग रहा है कि ये काम सब एक साथ हो रहे हैं. अगर हम चैटिंग कर रहे हैं, साथ साथ हम प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ हम मीडिया प्लेयर पे ऑन है हमारा, तो हमको ये व्यू आ रहा है कि कंप्यूटर में जो काम चल रहा है ये सब एक साथ हो रहा है. लेकिन OS क्या करता है, ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं विद इन अ नैनो सेकेंड दे आर गेटिंग preempted, like P1 then P2 then P3 then again P1 P2 P3. हमको ये पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम ले रहे हैं ये, लेकिन रियलिटी में ये बार बार प्रीएम्प्ट कर रहे हैं. सपोज P1 P2 P3 विद इन अ नैनो सेकेंड. सो वी आर गेटिंग दैट ये सब कुछ एक साथ चल रहा है. दिस इज टाइम शेयरिंग. Now we will look to the second type of operating system, which is real-time operating system. Real-time operating system. So this concept is completely time bounded. ये एक time bounded concept है जिसमें एक defined time होता है कि अगर एक process आ रहा है then वो process सिर्फ एक हम time जो उसका टाइम है जितने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए वो अगर वो उस टाइम में हो रहा है देन इट इज़ सक्सेस, और अगर वो टाइम को एक्सीड कर रहा है देन इट इज़ अ फेलियर. सो दिस इज़ टाइम बाउंडेड. बट इन दिस वी हैव सॉफ्ट टाइम बाउंडेड एंड हार्ड टाइम बाउंडेड. सॉफ्ट टाइम बाउंडेड एंड हार्ड टाइम बाउंडेड. सो बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, जो भी प्रोसेस है उसका एक डिफाइंड टाइम है कि इस टाइम तक अगर ये हो रहा है देन इट इज़ अ फेलियर. अगर उसने एक्सीड कर लिया तो ये मैंने गलत बोल दिया. जो प्रोसेस आ रहा है उसका एक डिफाइंड टाइम होता है. अगर इसका सपोज करो कोई प्रोसेस का ये है कि 5 सेकंड तक ये होना है एग्जीक्यूट. अगर 5 सेकंड तक हो रहा है, हो गया 5 सेकंड की लिमिट में, तो मतलब इट इज़ अ सक्सेस. बट इफ़ इट इज़ टेकिंग एक्स्ट्रा 1 सेकेंड देन इट इज़ अ फेलियर. दिस इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. बट इसके भी 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स हैं. सॉफ्ट टाइम बाउंडेड एंड हार्ड टाइम बाउंडेड. सॉफ्ट एंड हार्ड टाइम बाउंडेड. इन सॉफ्ट टाइम बाउंडेड देयर इज़ अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी. थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अगर टाइम एक्सीड हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं एग्जांपल देता हूँ. वॉशिंग मशीन. सपोज
वॉशिंग मशीन 30 मिनट्स ले रही है फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, लेकिन सपोज अगर वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा फॉल्ट नहीं आएगा इफ इट इज टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम. बट इन हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज इफ वी से something is need to be done in 6 seconds, so it should have to take place in 6 seconds, it should not exceed it. सपोज मिसाइल्स एंड सैटेलाइट अगर लॉन्चिंग के लिए सिर्फ 5 सेकेंड तक होना है, लॉन्चिंग का जो टाइम है, अगर वो लॉन्चिंग में 5 सेकेंड से ज़्यादा ले ले देन इट इज़ अ फेलियर. सो दिस इज़ हार्ड and this is soft. I think this is all clear. In next video we will see interrupt and system call and how operating system execute that system call. So that topics we will do in next video. Thank you.